जय मसीह की, प्रभु यीशु का धन्यवाद। ऑनलाइन हार्वेस्ट चर्च सर्विस जो परमेश्वर की तरफ से ये उपाय किया गया है, मैं सोचता हूँ आपने अपनी बाइबल्स लेके आए हैं, नोटबुक्स लेके आए हैं, एंड वी आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। Whenever we sing praises, God is there right now in your house, and we believe now every house is a church. So we thank God and we will now ponder into the Word of God. Let's open our Bible, and today the key text is found from John chapter 20 and verse 29. John chapter 20 and verse 29, the Bible says, Jesus saith unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen me and yet have believed. अभी हम हिंदी में पढ़ेंगे वचन को। हमारे बीच में मिसेस रीटा चौधरी, उनसे रिक्वेस्ट किया हूँ और वो आगे वचन हिंदी में पढ़ेंगे। जॉन 20:29। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। Here Jesus is talking about two kinds of personalities. Number one, those who go by the facts, that is Thomas. थॉमस ने बोला था कि मैं जब तक उसको देखूंगा नहीं, छू करके नहीं देख, I will not believe. There are people who go by the facts. And number two, another personality or type of people are those who go by faith. Those are the believers. And Jesus said, blessed are they that have not seen me and yet have believed. These are the believers class of people who believe the word of God. And we know the Bible says father of all believers is Abraham. Today's message is titled Fact versus Faith. Fact versus Faith. ना कुछ लोगों को फैक्ट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है और बाकी लोग वचन पढ़ के विश्वास में ही आगे बढ़ते जाते। फैक्ट, द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट सेज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यूज्ड एज एन एविडेंस। हिंदी में तथ्य सबूत के रूप में उपयोग की गई जानकारी का एक टुकड़ा है। इट इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यूज्ड एज एन एविडेंस। एवरी एडवोकेट लुक्स फॉर फैक्ट to build up the case. The more the facts, the more stronger his case becomes. Now, you have heard this saying before, the fact remains my brother, the fact remains my sister. Now, yes, the truth about events as opposed to the interpretation. Now, जब facts सामने में आ जाता है, लोग facts को believe कर लेते हैं. Whatever be the previous statement, they believe the facts. It is so normal that we as human beings tend to give more importance to facts. Our minds are trained, tuned, accustomed to give importance to fact. In fact, we are governed by facts. ना हमारा माइंड, दिमाग फैक्ट्स पर, तथ्य पर बहुत भरोसा करता है। हम जो बातों को देखते हैं, सुनते हैं, उसी से हमारे विश्वास को कई बार हम बिल्ड करना चाहते हैं। जैसे कि एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट, a child who has failed in his exams. Now, whatever the child may think, say or believe, but the hard fact is that he has failed. A person who is ill, कोई बीमार व्यक्ति है, डॉक्टर्स रिपोर्ट सब कुछ बोल रहे हैं that person is sick. Now, that is the hard fact. Facts are based on present data. Facts hit us so very hard. Facts are reality. Facts is a powerful force indeed. Today, our newspapers, social media, TV news are flooded with facts about the present scary situation around the world. These are all hard facts and we cannot ignore it. But let me tell you, there's another force called faith. विश्वास, ये भी एक बहुत बड़ी बल है, शक्ति है, सामर्थ्य है। The apostle Paul said in Romans chapter 10 verse 17, so then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. हिंदी में भी पढ़ देंगे सिस्टर रीटा प्लीज। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और एक वचन कहता है हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 1 में, एंड फेथ का डेफिनेशन यहां दिया गया। नाउ फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर,
It is the evidence of things not seen. हिंदी में पढ़ देंगे प्लीज. अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है. देखिएगा बाइबल बताती है ना, फेथ is the evidence, is the proof of things not seen. In fact, faith has got no facts. Faith is just believing on something what a person has said. Faith, in fact, does not require any fact. Faith says, I believe, I believe, I believe what I believe. Even though I don't see it, yet I believe. That is faith. Faith का definition ही ये होता है ना. We are called believers. We are not beggars. We are believers. We are asked to put faith in the word of God. आज जो आप लोग टीवी या यूट्यूब के द्वारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, let me ask you some simple questions. How many of you have seen the heaven, the beautiful mansions that God has prepared for us? I would say nobody. Have you ever physically seen or heard Jesus? कुछ लोगों को दर्शन भी होता है, पर बहुत सारे लोग हैं जिसने कभी यीशु मसीह को देखा भी नहीं होगा, ना छुआ होगा. Have you ever personally witnessed a dead person rising? Well, हमारे गुजरात हब इस चर्चेस में 8 cases हुए जहाँ पर even dead came to life. But there are many who have never seen a great miracle in front of their eyes. Like this, there are many other questions which question the authenticity of the Bible. Is Bible really true or not? Is God really alive or is he a dead God? हम लोग कई बार ये facts को ही देख करके हम चलते हैं. If for some reason we are not able to get the facts straight, it is human to tend towards common belief. आमतौर पर सामान्य विश्वास, believing words which is commonly accepted by all. अगर कोई कारण से हमको ना वो facts नहीं मिल रहे हैं, तो ये हमारी मनुष्य की स्वभाव होता है कि आमतौर पर जनता जो बोल रही है, जनता जो भीड़ चल रही है, हम भी उसी पर विश्वास करना चाहते. और जनता तो फैक्ट्स मांगती है. मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं एक व्यक्ति जिसका नाम था गैलीलियो ना. एंड इट वाज अंटिल द मिड 1600s that a time period in human history wherein all mankind commonly believed that the earth is flat. सभी मानव जाति का आमतौर का ये मानना था कि पृथ्वी चपट या फ्लैट है. And the whole solar system revolves around the earth. ना पूरा ये sun, moon, stars, earth is in the center and everything is rotating around the earth. ये common belief था until the 1600s, mid 1600s तक ना. But there came a man named Galileo Galilei. In the year 1615, 1615, Galileo was also called the father of astronomy. He was also called the father of modern physics. He was called the father of science. He proved to the entire world that their belief system is wrong. He introduced the heliocentrism theory, which not only proves that the earth is round, but also that it revolves round the sun. इसने एक थ्योरी लाया, heliocentrism, जो बताती है earth is not flat, but it is round. And the earth and the other planets are rotating around the sun. ये जो common belief था, उसका विरोध था, उसका उल्टा इसने कर दिया ना. The whole world was going after facts. Galileo had a very tough time, difficult time. He was even put in the house arrest. But even in the house arrest, he wrote 2 of his famous works or books called 2 New Sciences, in which he summarized the work he had done for the last 40 years, and he introduced the kinetic energy and the strength of materials. और बहुत सारे इसने और theories को लेके आया ना. And ultimately this man died in the year 1642. But he brought something. He enlightened the world that the earth is not flat. He even said the waves in the sea, जो बड़ी बड़ी waves or tidal waves, it is because the earth is round and it is the evidence of motion of the earth. अर्थ गोल गोल घूम रही है. इसलिए देखिए, it was very difficult for the common man to ever believe
that the earth is flat, that the earth is round and that the earth is rotating. ये एक आम व्यक्ति के लिए बहुत कठिन था. मैं जो बात बता रहा हूं, facts versus faith, we commonly tend to go by facts ना. इसलिए थॉमस ने भी बोल रहा है ना, unless I see, unless I touch him, I will not believe that he is risen from the dead, कि यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा है. He is going by his 5 senses ना. ये 5 इंद्रियों के द्वारा इंफॉर्मेशन और बिलीफ सिस्टम उसका इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, और अधिकतर के आम लोग वो फैक्ट्स पर ही अपना बिलीफ सिस्टम को बेस रखते हैं ना. देखिएगा, दिस मैन हुज नेम वाज कॉल्ड गैलीलियो, उसका सरनेम वाज गैलीली. गैलीली इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन नेम कॉल्ड गैलीलियस, मीनिंग अ मैन फ्रॉम गैलिली. गैलिली ना, जो नॉर्दर्न इजराइल का एक पार्ट था, इसलिए उसका नाम ही ये पड़ गया था. मैं आज इंट्रोड्यूस आपको करना चाहता हूं एक व्यक्ति जो गैलिली से था. उसका नाम था जीसस ऑफ नाज़रेथ, who proved to the world that there is life after death. Now, who proved to the world that there is a heaven up above and there are heavenly mansions awaiting for all of us. ये वाला थ्योरी बहुत सारे लोगों को जमता नहीं ना, because they want to go by the facts. उनका कॉमन बिलीफ है, भैया जीवन यही है ना, यहीं पर खा लो पी लो ऐश कर लो और जीवन खत्म हो गया, एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स, नथिंग मोर, नथिंग लेस ना, यही दुनिया में. एंड नॉर्मली द होल क्राउड बिलीव्स दैट काइंड ऑफ अ थियोलॉजी और एंड अ बिलीफ. बट जीसस, ही केम फ्रॉम हेवन ना, और उसने स्वर्ग के बारे में बताया, लाइफ आफ्टर डेथ एंड इटर्नल लाइफ के बारे में बताया, कि हमारी आंखें जब यहां बंद होती है, हम स्वर्गीय स्थान में युगानुयुग, एवरलास्टिंग इटर्नल लाइफ, वी आर गोइंग टू लिव विथ हिम इन द हेवनलीज ना. ये यीशु मसीह ने कोड़े खाया, 39 कोड़े. मेल गिब्सन का फिल्म अगर आपने देखा, पैशन ऑफ क्राइस्ट, और ये सीजन में रिमेंबर द लॉर्ड्स डेथ, जरूर से इसको देखिएगा ना. कितना दुख पीड़ा. दीज आर रियलिटीज, दीज आर फैक्ट्स माय ब्रदर. इवन द एम्प्टी टूम जो इजराइल में है, एंड द ओनली empty tomb in the world today is the tomb of Jesus. It is a fact that he died and he rose again. Hallelujah. मेरा यीशु मसीह जिंदा है. It is a well known fact. Today science cannot disprove the Bible ना. इसलिए हमको यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करना बहुत जरूरी है. देखिएगा, विश्वास ना एक व्यक्ति के जिस पर हम भरोसा करते हैं उसके शब्दों पर हम लोग विश्वास करना चाहते हैं. फेथ कम्स बाय बिलीविंग द वर्ड्स ऑफ अ पर्सन whom you trust. एक व्यक्ति जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, वो कुछ भी बोल दे आपको, आप बिलीव कर लेंगे. जैसे कि एक छोटा बच्चा जो घर में बड़ा हुआ है, फादर के वर्ड्स पर ट्रस्ट करता है ना, बिकॉज द फादर इज नेवर फेल्ड हिम. दुख नहीं दिया, पीड़ा नहीं दिया उसको, तो इसलिए फादर जो भी बोलता है, द चिल्ड्रन विल बिलीव. मदर बच्चों को फीड करती है. द मोर द चाइल्ड ग्रोज अप इन दिस लविंग एनवायरनमेंट, द मोर ही स्टार्ट्स ट्रस्टिंग ऑन हिज पेरेंट्स ना. सो इसलिए फेथ कम्स बाय बिलीविंग द वर्ड्स ऑफ अ पर्सन whom you trust, कि मेरा प्रभु मुझको धोखा नहीं देगा. हमारे पास में जो बाइबल है, these are the words of Christ Jesus Christ, who is the way, the life, but also the truth. There is no lie in him. उसने कभी झूठ नहीं बोला. Therefore I put my whole trust in his words ना. And the Bible says, by the stripes of Jesus Christ I am healed, and I receive that word. The Bible says कि हमारी आंखें यहाँ बंद हो जाएगी, हम युगानुयुग के लिए स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ में जाने वाले हैं, जिन्होंने मन फिराया और बपतिस्मा लिया. We believe his words. इसलिए रिपीट करूंगा, रोमन्स 10:17 जो पॉल ने बोला है, so then faith cometh by hearing and hearing by the word of God ना. सुनने से विश्वास और प्रभु के वचन को सुनने. आज आप ऑनलाइन सरमन सुन रहे हैं ना, आप बाइबल के वचन को सुन रहे हैं ना. ये परमेश्वर की आत्मा जब हमसे बातचीत करती है, अंदर हृदय छिद जाता है, अंदर कुछ बेचैनी, अंदर कुछ गुदगुदी होना, बिकॉज इट इज द वर्ड्स इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा हमको कुछ बातें बोलता है ना. विश्वास सुनने से आता है. ऑल्सो फियर ऑल्सो कम्स बाय हियरिंग.
fear comes by hearing. The more you hear, the more you see, the more you read, ना उतना और फियर बिल्डअप होता, फियर बिल्ड होता अप और हो जाता ना। और फियर अगर माइंड में घुस जाता है तो माइंड को पैरालाइज कर देता है। इसलिए यू हैव टू लर्न हाउ टू कंट्रोल फियर इन योर लाइफ। एक बाइबल का एक पैसेज पढ़ना चाहता हूं जो लूक चैप्टर 8 में वर्स 50 में पाया जाता है, 8 और 50 में। इंग्लिश में बोलता है, बट व्हेन जीसस हर्ड इट ही आंसर्ड सेइंग, फियर नॉट, बिलीव ओनली एंड शी शैल बी मेड होल। यहां पर ना हिंदी में पढ़ देंगे, सिस्टर रीटा प्लीज। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। यहां पर जैरियस की बेटी पहले तो बीमार थी। दिस वॉज हिज ओनली डॉटर। इमेजिन हाउ डेस्परेट दिस मैन जैरियस वॉज। ही वांटेड टू सी हिज डॉटर होल एंड हेल्दी एंड कम बैक टू नॉर्मल लाइफ। इसलिए वो यीशु मसीह के पास में आया और यीशु मसीह ने उसी पैसेज में स्टार्टिंग में वर्ड्स बोला था ना, आई विल कम एंड हील हर, मैं आकर के उसको चंगा करूंगा। परंतु आगे हम जानते हैं ना, वहां पर एक 12 साल की लहू की स्त्री आई, यीशु मसीह को छुआ उसने ना, और थोड़ा समय लग गया, वो स्त्री तो पूरी चंगी हो गई। पर उस बीच में बिकॉज ऑफ दैट लिटिल बिट ऑफ डिले, जैरियस डॉटर डाइड। शी वॉज सो टर्मिनली इल। उस समय यीशु को पुकारा, यीशु मसीह ने बोला था, आई विल कम एंड हील हर, बट इन दैट टाइम पीरियड शी डाइड। एंड लोगों ने आकर उसने जैरियस को बोला है ना, ट्रबल नॉट द मास्टर, मालिक को तकलीफ मत दे, तेरी बेटी मर गई है। इमेजिन व्हाट अ शॉक ना। जैरियस मस्ट हैव रिसीव्ड हिज डॉटर इज डेड। बट लुक एट दिस वर्स, व्हेन जीसस हर्ड इट, जीसस आल्सो हर्ड दोस वर्ड्स, बट येट ही सेड to Jairus, fear not, Jairus, fear not, only believe, only believe. Stay focused on your belief. Don't go by the facts, go by your belief. Go by your belief. Believe on what I've said before. I've said I will come. I will come and heal her. मैं आऊंगा और उसको चंगा करूंगा। यीशु मसीह जैरियस को सिखा रहा है कैसे मिरेकल्स हमारे लाइफ में हो सकते हैं when we put our whole hearted belief in the word of God, in the word of God, in the word of God ना। यीशु मसीह ने, एक हिंदी ट्रांसलेशन में बाइबल में कहता है ना कि यीशु मसीह ने अनसुनी कर दिया उस शब्द जो फैक्ट्स के लोगों ने आके बताया था, ट्रबल नॉट द मास्टर फॉर शी इज ऑलरेडी डेड। उसको अनसुनी, एज इफ ही डिड नॉट हियर इट ना। उसने अपने ईयर्स से नहीं, यू गॉट टू पुट अ फिल्टर ऑन योर ईयर्स। यू विल बी सराउंडेड बाय फैक्ट्स, sometimes by fearful news which will cause panic, which will cause fear in our hearts and lives, and our future may look so very dark na. But sometimes you got to put a filter on your ears. I will only choose to believe in the word of God. The word of God says, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, all the days of my life, and I will dwell in the house of God forever and ever and ever and ever ना। surely, निश्चय ना, करुणा और भलाई मेरे साथ होने वाली। that is my future। दाऊद राजा अपना फ्यूचर का भविष्यवक्ता है, वो बता रहा है ना। सो इसलिए फैक्ट्स वर्सेस फियर। इसलिए ओपनिंग वर्स जो आपको मैंने कोट किया था, थॉमस का ये विश्वास था, जब तक मैं देखूंगा नहीं, जब मैंने विश्वास करने वाला ना। इसलिए पर यीशु मसीह ने उत्तर देकर कहा, थॉमस तू तो देखकर विश्वास किया। वहां पर उस सीन में यीशु मसीह सामने खड़ा हो गया। द बाइबल सेज आफ्टर 8 days ऑफ हिज रेजरेक्शन, 8 दिन के बाद थोमा के पास में आया ना, और थोमा को ये चिन्ह दिखाया। थोमा को बोला, लाइए, फैक्ट सुना तेरे को ना, फैक्ट सुना ना, लाओ, सी आई एम अलाइव, आई एम नॉट डेड, आई एम रिजन फ्रॉम द डेड। थॉमस ही सेज, माय गॉड, माय लॉर्ड, आई बिलीव, अब जाके विश्वास किया। बहुत सारे लोग होते हैं ना, मेरी बेटी चंगी हो जाए और ये आश्चर्यक्रम दिखाएगा तो मैं यीशु मसीह पर विश्वास कर लूंगा। ये लोग जो साइंस देखकर विश्वास में आते हैं, ये अपने विजडम को यूज कर रहे हैं, ह्यूमन माइंडसेट, इंटेलेक्ट ना, कि सचमुच में भैया मैं वहां भी गया था, वहां भी गया था, वहां भी गया था, कुछ नहीं मिला, बट जब प्रेयर किया चंगा हो गया। ओ यस, जीसस इज अ ग्रेट गॉड। दे हैव कम
through their wisdom. And the Bible says the world by wisdom knew not God. You will never be able to know God. अपने माइंड के द्वारा, अपने एक्सपीरियंस के द्वारा, अपने फैक्ट्स लेकर। जैसे मैंने कहा ना, आपने कभी हेवन देखा क्या? आपने देखा आपका मकान, आपका नाम स्वर में जीवन की पुस्तक? आपने नो, बट वी बिलीव द वर्ड्स ना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा धन्य तो वो है जिन्होंने देखा है का नहीं, बट दे बिलीव। नथिंग कैन शेक माई बिलीव, नो हार्ड फैक्ट्स कैन शेक माई बिलीव ना। यू गॉट टू बी स्ट्रांग ऑन योर फेथ, ऑन योर बिलीव। हम जानते हैं फादर ऑफ ऑल बिलीवर्स एब्राहम, बट लुक एट द लाइफ ऑफ एब्राहम। जब जेनेसिस चैप्टर 12 में when God called Abraham out of his father's house, and God said, I will make of thee a great nation, Genesis 12, 1, 2, 3, and I will bless thee, and I will make thy name great, and I will bless them that bless thee, and curse them that curse thee, and in thee shall all the families of the earth be blessed. ये प्रभु ने शब्द बोला, and the next verse says, Abraham left his father's household, his own town, his own village. अपनी वाइफ सैरा भी उसके साथ साथ जाती है और दूर देश चले गए। They went as far as Egypt also. किसी बाइबल स्कॉलर्स ने बताया almost it was 600 miles journey that they had gone so far away from the father's house, from the land where he was born and brought up there. उन दिनों में कुछ मोबाइल फोन भी नहीं, कुछ कम्युनिकेशन भी नहीं, मीन्स ही वॉज टोटली कट ऑफ एंड नाउ डिपेंडेड अपॉन गॉड। मैं तो ये सोच रहा था यहां एब्राहम की जगह अगर थॉमस होता तो, इफ थॉमस वुड हैव बीन देयर इंस्टेड ऑफ एब्राहम, ही वुड हैव सेड, गॉड दिस इज अ वेरी गुड वर्ड। नाउ ही कुड हैव टोल्ड हिज वाइफ दैट यू स्टे बैक होम, और मैं जाता हूं, देख के आता हूं गॉड ने कौन सी जगह बोला। ही वांटेड फैक्ट्स, सचमुच में अच्छी जगह है कि नहीं। फिर बाद में अगर फोन होता तो 2 महीने बाद फोन किया होता, यस सैरा यू ऑल्सो कम अलॉन्ग, दिस गॉड इज अ गुड गॉड एंड ही हैज टोल्ड एज ही हैज सेड, ही हैज डन इट इन माय लाइफ। बाद में, पर लुक एट अब्राहम, he was wholly dependent upon God Almighty. Yes, God has said it will happen in my life. Therefore, my brother, my sister, we thank God for all the facts in front of us, but more than that is our faith. We believe na, in the word of God. What God has said, what God has promised, he will surely perform it. He will surely do it. जो प्रभु ने प्रतिज्ञा बोला है वो पूरा करेगा। हम सिर्फ विश्वास रखें। खास करके लिए ये घड़ी जो हमारे देश में बीत रही है, we need to grow strong in our faith. ना विश्वास में हम बढ़ते जाएंगे ना, ताकि ये स्टॉर्म्स जो हमारे लाइफ में जो भी आते हैं उस पर हम जय मिलेगा तो विश्वास के द्वारा। मैं तो कई बार कह चुका हूँ चर्च में, हमारे बैंक में भरना है तो विश्वास को भरो ना, विश्वास में दृढ़ होते जाओ ना। देखो, माई फेथ विल डिसाइड माई फेट, मेरा फ्यूचर, मेरा भविष्य, मेरा विश्वास तय करने वाला है ना। इसलिए बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं ये समय। आइए लेट अस प्रे। धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु, आज हम चेलों के समान यही प्रार्थना करते, लॉर्ड इंक्रीज माय फेथ, और विश्वास को बढ़ा दे। 100% प्रभु हम तेरे वचन पर ही भरोसा करें। हमारे अविश्वास पर क्षमा कर प्रभु, दया कर, माफ कर प्रभु। कई बार हमने फैक्ट्स मांगा तुझसे, तुझ पर परीक्षा भी हमने लिया पिता, आज हम क्षमा मांगते लॉर्ड। आई प्रे फॉर एवरी लिसनर ऑन दिस channel, Lord, and on the program, Lord. I pray, pronounce a blessing upon their life, blessings of divine protection, Lord, divine provisions, Lord प्रभु। हर एक आवश्यकता जरूरतों को पूरी कर और उनको चंगाई दे, सामर्थ दे पिता, और हर एक लगने वाली बीमारी, इंफेक्शन से बचा के रख। धन्यवाद देते प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन।